So today we are going to learn some new tricks and tips to remember the chapter, which is your Animal Kingdom, the 6th chapter of your textbook. And this chapter is filled with all the phylum names and the classes, the subphylums, and how all the living organisms in the world are actually classified. So ये सब remember करने के लिए इस video में there will be various tips and tricks which will make the whole chapter very easy to remember. So let's start. So सबसे first there is Whittaker's 5 kingdom classification. So there is a chart in your textbook जिसमें ये दिया है. तो in this what does 5 kingdom classification mean? कि हमारे जितने भी दुनिया में living organism है, they are divided into 5 kingdoms. Okay, so those 5 kingdoms were Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So Monera, Protista, Fungi, Plantae ये सब आपने last standard में पढ़ लिया है. But ये chapter, this is about Animalia. So let's just first see what is Whittaker's 5 kingdom classification. So when the first life was formed on the earth, the first kingdom was Monera. जब भी first life आया था हमारी दुनिया में, तो that kingdom, वो सभी organism kingdom Monera में आए. And those cells were prokaryotic cells. Now what are prokaryotic cells? If you remember prokaryotic cells, so they are very primitive cells. उनमें ना कुछ cell organelles होता है, उनका nucleus भी ठीक से form नहीं हुआ होता है. So they are very primitive cells and they are always unicellular. Okay, so then came the second kingdom, which is Protista. So पहले कौन से cells थे? Prokaryotic cells थे. अब आगे जैसे जैसे evolution हुआ, तो second आए Protista. Now again they were unicellular, but they were eukaryotic cells. Now with prokaryotic cells, it was a very primitive type of cell, बहुत छोटा cell था. But the eukaryotic cells are more advanced type of cells. They have cell organelles like mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulum. So the proper structured cell organelles थे eukaryotic cells में, and even the nucleus was properly structured. But Monera and Protista, they both the kingdoms have unicellular cell organism. Unicellular means only one cell. Then जैसे जैसे और evolution होता गया, तो multicellular organism आने लगे. And the first to form was fungi. फिर fungi के बाद form हुआ Plantae, and then came the last kingdom, that is Animalia. So now this fungi, they were decomposers and they were saprophytic. That is, they fed on dead plants and animals. Dead plants और animals के through उनको nutrition मिलता था और उससे grow होते थे. और अभी भी grow हो रहे. Okay, fungi ये सब kingdom के जो भी species है, they are still present. Then there is Plantae, which were producers and autotrophic. Producers means हमारे world में जितना भी food है, that is directly or indirectly dependent on the plant kingdom. और autotrophic means वो लोग photosynthesis करते थे, so they produce the food themselves. इसीलिए autotrophic. And then the last kingdom Animalia, which were consumers and they were heterotrophic. Heterotrophic मतलब दूसरों के ऊपर depend करते हैं for nutrition. So this is the 5 kingdom classification. So in your textbook you have a chart. So उसमें ये अगर आप एक ट्री जैसा डायग्राम याद रखोगे, तो it will be very easy to remember all the kingdoms and their characteristics. Okay, so now अभी ये सब जो kingdom थे वो हमने last year पहले ही पढ़ लिए थे. Now we are going to see the kingdom Animalia, but a hierarchy of classification. Now what does this mean? कि kingdom is the highest classification. उसके अंदर फाइलम आता है, उसके अंदर क्लास आता है, फिर क्लास के अंदर ऑर्डर आता है, ऑर्डर के अंदर फैमिली आता है. सो इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न टिल क्लास, कि हम क्लास तक क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं. तो व्हाट हैपेंस हियर? सो ये जो है ना, हमें लाइन में याद रखना बहुत जरूरी है. सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. सो ये तुम लाइन में कैसे याद रखोगे? सो देयर इज वन ट्रिक टू इट. सो इट्स अ सेंटेंस which says keep pot clean or family gets sick. Very easy to remember, है ना? Keep pot clean or family gets sick. So K का keep का K kingdom, pot का P phylum, clean का C class, O और का O order, F का family, gets का G genus and sick का S species. So this is very easy to remember. Keep pot clean or family gets sick. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. So it is very important to remember. ये हमें line में याद रखना बहुत जरूरी है. इसीलिए this sentence is given. So now let's go ahead. So this is your overall chapter. एक अच्छे से chart में दिया है.
सो वी ऑल नो दिस किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया है, एंड दे आर मल्टी सेल्यूलर, ये हमने वो ट्री वाले डायग्राम में देख लिया। ओके, नाउ देयर वर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल, दैट इज सेल फॉर्म, बहुत सारे सेल मिलके जो भी बॉडी बनाते हैं उनको सेलुलर लेवल बोलते हैं। देयर इज नो टिश्यू फॉर्मेशन येट। फिर और इवोल्यूशन हुआ तो ये सेल्स क्या हुए, टिश्यू बनाने लगे, एंड देन देयर केम द टिश्यू टिश्यू सिस्टम। फिर वो बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाए तो ऑर्गन, एंड देन लास्टली देयर इज ऑर्गन सिस्टम। तो सेल्यूलर लेवल पे सिर्फ एक ही फाइलम है, कौन सा, फर्स्ट हमारा पोरिफेरा। ठीक है, सो अभी ये भी आपको याद रखना लाइन में जरूरी है कि सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। व्हाई दिस इज नेसेसरी, बिकॉज अगेन जब आप फाइलम के नाम पढ़ोगे तो ये ऐसे लाइन में ही है। सो पोरिफेरा है तो इट इज सेल्यूलर लेवल, निडेरिया है इट इज टिश्यू लेवल, प्लैटीहेलमिंथस है उसमें ऑर्गन लेवल, और उसके बाद जो भी है दे आर ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस इन लाइन। अगेन विद सिमेट्री भी ऐसा ही है। ओके, सो फर्स्ट सिमेट्री है असिमेट्रिकल। ओके, पोरिफेरा क्या होता है, असिमेट्रिकल होता है, मतलब उसको कुछ शेप ही नहीं है। देन देयर इज रेडियल सिमेट्री, देन एंड देयर इज बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया, तो आई वोंट गो इन डिटेल। एंड देन फिर जब टिश्यू फॉर्म होता है, ठीक है, सेल्यूलर लेवल में तो बॉडी कैविटी और सीलम होगा ही नहीं क्योंकि उसमें टिश्यू ही नहीं, बट व्हेन टिश्यू इज फॉर्म देयर इज बॉडी कैविटी, सो देयर में बी ओसिलोमेट, मतलब उनमें सीलम नहीं है, स्यूडोसिलोमेट, देयर इज फॉल्स सीलम एंड ट्रू सीलोमेट। तो ये भी आप देखोगे तो लाइन में है, पहले ओसिलोमेट आया, फिर स्यूडोसिलोमेट एंड देन ट्रू सीलोमेट। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द नेम्स ऑफ ऑल द फाइलम्स। सो ये भी as I said लाइन में याद रखना, it is very necessary. So let's just first see कि एक एक फाइलम का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उनको वो नाम क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले there is porifera. तो this porifera are your sponges and they have lots of pores in their body. पूरे बॉडी में pores होता है, that is they are called as ostia, जो छोटे छोटे pores है, and जो round big round है that is your osculum. देन पोरिफेरा के बाद है निडेरिया। तो इनको निडेरिया क्यों नाम दिया है, जैसे ये जेलीफिश है तो ये जेलीफिश का जो स्टिंग लगता है ना, तो दो सेल्स आर कॉल्ड एज निडोब्लास्ट। सो वो प्रे को कैच करने के लिए हेल्प करता है, तो इसलिए उसका नाम क्या दिया है, निडेरिया। देन वी हैव प्लैटीहेलमिंथस। सो प्लैटीहेलमिंथस ऐसा नाम किया दिया, प्लैटी मतलब फ्लैटी। ओके, सो दे आर लीफ लाइक और फ्लैट स्ट्रक्चर, सो इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स। फिर है अस्केलमिंथस। तो कहीं भी आप हेलमिंथस पढ़ोगे ना, उसका मीनिंग है वर्म्स। ओके, नाउ अस्केलमिंथस दे वर राउंड वर्म्स। एक अगर हम समझो हम एक पेंसिल लेते हैं, ठीक है, तो पेंसिल कैसा होता है, एक तो सॉलिड होता है और राउंड होता है, तो वैसे ही कुछ तो स्ट्रक्चर होता है स्केलमिंथस। देन देयर इज एनालिडा। नाउ एनालिडा आर द रिंग वर्म्स। ठीक है, अगर आपने कभी अर्थवर्म देखा होगा तो माइन्यूटली अगर देखा होगा तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक एक रिंग है ना साथ में आता रहता है, उस फीचर को इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो अगर आपको पूछा जाए विच फाइलम इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, तो यू कैन राइट एनालिडा। Then there is Arthropoda. Now this is the largest phylum of your animal kingdom. ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम मतलब सबसे ज्यादा स्पीशीज आर्थ्रोपोडा में होते हैं। एंड आर्थ्रोपोडा मीन्स, पोडा मीन्स अपेंडेजेस और योर हैंड्स एंड लेग्स। ओके, एंड दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, सो इसलिए उसका नाम क्या दिया है, आर्थ्रोपोडा। देन देयर इज मोल्यूस्का। मोल्यूस्का नाम से ही ऐसा लगता है कुछ तो सॉफ्ट बॉडी जैसा रहेगा, ठीक है, सो दे आर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म। दे मे हैव शेल और दे मे नॉट हैव शेल। जैसे स्नेल में उनको शेल है, लेकिन स्नेल का जो बॉडी है कैसा होता है, इट इज सॉफ्ट बॉडी। देन देयर इज इकाइनोडर्मेटा। अभी इकाइनो मीन्स ऐसा स्पाइनी स्पाइनी होता है, ओके, एंड डर्मेटा मीन्स स्किन। अगर आपने सुना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट, वो स्किन के डॉक्टर होते हैं, सो उनका स्किन कैसा होता है, इकाइनोडर्मेटिका, इट इज स्पाइनी, ऐसे छोटे 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 बम्प्स होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा, तो स्पाइनी स्किन। देन वी हैव हेमिकॉर्डेटा। हेमी मीन्स, हेमीस्फीयर का हेमी क्या होता है, मतलब आधा स्फीयर ना, तो यहाँ भी हेमी मीन्स दे आर हाफ कॉर्डेट्स। एंड लास्ट में वी हैव कॉर्डेट। उनको कॉर्डेटा क्यों बुलाते हैं, बिकॉज दे हैव नोटोकोर। नाउ you have to remember all these names in the line. So पोरिफेरा के बाद आप प्लैटीहेलमिंथस नहीं बोल सकते, क्योंकि नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा उनके फीचर्स पढ़ने में। तो अब हम कैसे याद रख सकते हैं, तो अगेन इसके लिए एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस क्या है, प्रिंस चार्ल्स प्लेस ऑसम अंताक्षरी एंड मेक्स, मोस्टली सॉरी, eats hot cucumbers.
ठीक है। प्रिंस चार्ल्स क्या करता है, ऑसम अंताक्षरी खेलता है और हॉट क्यूकुम्बर मतलब ककड़ी खाता है। ओके, सो प्रिंस चार्ल्स प्लेस ऑसम अंताक्षरी एंड मोस्टली ईट्स हॉट क्यूकुम्बर। सो प्रिंस का पी क्या करेगा, पॉरीफेरा, चार्ल्स का सी निडेरिया। ओके, नाउ रिमेंबर दिस, ये वाले सी से प्रोनाउंस नहीं होता, सी इज साइलेंट बट स्टिल द स्पेलिंग में निडेरिया आएगा। देन प्लेस का पी से प्लैटीहेल्मिंथस, ऑसम का ए अस्केल्मिंथस, अंताक्षरी का ए एनालिडा, आर्थ्रोपोडा का ए, एंड का ए आर्थ्रोपोडा, मोस्टली का एम मॉल्यूस्का, फिर ईट्स का ई इकाइनोडर्मिटा, एच का हॉट हेमिकॉर्डिटा और क्यूकुम्बर का सी कॉर्डिटा। सो प्रिंस चार्ल्स प्लेस ऑसम अंताक्षरी एंड मोस्टली ईट्स हॉट क्यूकुम्बर्स, पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेल्मिंथस, अस्केल्मिंथस, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. Okay, easy. So बस ये स्पेलिंग आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको स्पेलिंग में गड़बड़ हो तो। ओके, इज इट इजी नाउ? आई होप इट्स इजी। प्रिंस चार्ल्स प्लेस ऑसम अंताक्षरी एंड मोस्टली ईट्स हॉट क्यूकुम्बर्स। नाउ दिस आर ऑल योर फाइलम नेम्स। ओके, तो हमने देखा था किंगडम एनिमेलिया, फिर किंगडम एनिमेलिया के नीचे हमने देखा था कीप, पॉट, तो पी था, ये फाइलम है, ये सब आपके फाइलम है। अभी लास्ट का जो फाइलम है कॉर्डेटा, इसमें कुछ सब फाइलम है। ओके, सो फाइलम कॉर्डेटा में कुछ सब फाइलम है, दे आर यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो सब फाइलम कौन कौन से हैं, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम कौन कौन से हैं, तो देयर इज यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। Now, Urochordata and Cephalochordata के कुछ आगे क्लासिफिकेशन नहीं दिए, but now this vertebrata, this has again more classification। तो हमने क्या पढ़ा था, किंगडम, फाइलम, फिर फाइलम के अंदर सब फाइलम, उसका एक छोटा सा डिवीजन होता है, की, पॉट, क्लीन। तो देन वी सॉ क्लीन का क्या था, क्लास था। तो वर्टिब्रेटा के कितने क्लासेस है, 1 2 3 4 5 6, कितने क्लासेस है, देयर आर 6 क्लासेस। उसको कैसे याद रखोगे, सी परम। So C stands for cyclostomata, P stands for Pisces, A stands for amphibians, R stands for reptiles, A stands for aves, and M stands for mammalia. Okay, so cyclostomata क्यों नाम था उनका, because उनका जो मुंह होता है ना, that is circular shape. Okay, then Pisces, Pisces are your fishes. फिर है amphibians, amphibians I hope you know, amphibians are organism which can live both in land and water, but उनके जो टेडपोल्स होते हैं या उनके जो लार्वा होते हैं, दे रिक्वायर वाटर, वो लोग वाटर के बाहर ग्रो नहीं हो सकते। देन देयर इज रेप्टाइल्स व्हिच आर योर क्रॉलिंग एनिमल्स, फिर एव्स होते हैं जो क्या है, एव्स आर योर बर्ड्स, एंड लास्टली वी हैव मैमेलिया, मैमेलिया आर मैमल्स, और उनको मैमेलिया क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हैव मैमरी ग्लैंड्स व्हिच गिव्स मिल्क टू द बेबी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मैमेलिया। Okay, so these are some of the tips and tricks to remember your chapter. Obviously you have to read the chapter thoroughly and आपको कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है फाइलम के, वो आपको याद रखने ही है, बट ये इससे भी आपको बहुत कुछ अच्छे से याद रह सकता है, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं। ओके, सो नाउ विल जस्ट कुछ और हम देखते हैं, एक 5 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम कि हमें समझा कि नहीं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज that this phylum has jointed appendages, so it belongs to which phylum? Jointed appendages कौन से phylum में होता है? Okay, so we saw ना कि पॉलीफेरा तो pores वाला था। Okay, then annelida में हमने ringworms देखे थे, nidaria में क्या था, there were nidoblasts, और बचा कौन सा, arthropoda। So arthropoda that is your insects mostly, जैसे कॉकरोच है, बटरफ्लाइज है, बीज है, तो उनके कैसे होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, you guessed it very correctly, that is arthropoda. So let's go to next question. Vertebrata is divided into dash classes. Okay, so we just saw कि हमने देखा किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया के अंदर फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हमने सब फाइलम 3 देखे, सो वर्टिब्रेटा इज योर सब फाइलम। फिर उसके अंदर हमने क्लासेस देखे थे, राइट, वी सॉ सी परम, है ना, तो CPARAM, तो कितने क्लासेस हुए, yes you guessed it correctly, that is your 6 classes। ठीक है, so they can even ask the number of classes। then which of the following is not a class of vertebrate? Okay, you have to focus कि is दिया है या not दिया है, ठीक है, they can confuse you।
सो विच इज नॉट द क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा। तो इसमें से कौन सा सी परम का पार्ट नहीं है? सी वॉज साइक्लोस्टोमाटा, ए वॉज, टी वॉज स्पाइसेस, then A was amphibians, R was reptilia, फिर again A was aves and M was mammalia. So कौन सा odd man out लग रहा है? Yes, you guessed it correctly. That is your craniate. Now, let's move to the next question. So name the phylum with cellular grade organization. So cellular grade organization क्या था? That is they only have cells in their body. उनका कुछ टिश्यू फॉर्म नहीं हुआ है। और ऐसा तो एक ही है हमारे पूरे इसमें, दैट इज योर फर्स्ट वन। सबसे फर्स्ट कौन सा था? प्रिंस चार्ल्स। तो प्रिंस कौन था? दैट इज योर पोरिफेरा, करेक्ट। सो पोरिफेरा हैज ओनली सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनमें ऐसे कुछ टिश्यूज फॉर्म नहीं हुए। सो एज आई सेड कि आपको वो कैरेक्टरिस्टिक भी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, स्यूडोसीलम, सीलम, असीलम, वो सब आपको लाइन में ही याद रखना है। तो कैसा होगा, इससे आपको याद रह सकेगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द लास्ट क्वेश्चन, नेम द फाइलम व्हिच इज डिप्लोब्लास्टिक। ओके, सो डिप्लोब्लास्टिक आर ऑर्गेनिज्म व्हिच ओनली हैव 2 germ layers। ओके, सो सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक आता है, और अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो उनमें टिश्यू होना बहुत जरूरी है। सो ऑब्वियसली पॉलीफेरा तो नहीं होगा क्योंकि उसमें तो टिश्यू ही फॉर्म नहीं हो रहा है ना। सो एंड एनालिडा इज योर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो एनालिडा के बाद तो बहुत बाद इक्वाइनोडर्मिटा आता है, तो बचा एक कौन सा? दैट इज योर सिलेंटेरेटा, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज निडेरिया। ओके, सिलेंटेरेटा का दूसरा नाम क्या है? निडेरिया। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सिलेंटेरेटा एंड निडेरिया आर द सेम थिंग। इट्स ओके। आई होप this video is useful for you for your exams, and please practice all the tips and tricks. First was your hierarchy of classification, keep pot clean और family gets sick. फिर हमने वो 5 kingdom classification का ट्री देखा, Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. फिर we saw the phylum name का एक sentence, Prince Charles plays awesome Antakshari and mostly eats hot cucumbers, है ना। एंड देन लास्ट में वी सॉ सबफाइलम वर्टिब्रेटा के क्लासेस का शॉर्ट फॉर्म क्या था? सी परम। सो सी वाज साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, देन एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमेलिया। ओके, so I hope this video is useful for you and all the best.